आप लखनऊ में। आज हम इमामबाड़ा गए, उसके बाहर भी लिखा हुआ था मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। हमने जिस गाइड को हायर किया उसने भी सबसे पहली बात यही की, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ब्यूटीफुल सिटी। सो आप सभी लोग कितने लोग नॉन पॉल साइंस बैकग्राउंड से हैं? एनीबडी फ्रॉम नॉन, आप नॉन पॉल साइंस बैकग्राउंड? अच्छा, टारगेट ईयर पहले डाल लेते हैं। टारगेट ईयर 25, 26, अच्छा मतलब फर्स्ट एग्जाम, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट 26 में, 27, 27 आप, चलिए 28, चलो गुड। कितने लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कर रहे हैं? ऑलरेडी देयर, इट इज करेंटली गोइंग ऑन। जून बैच, हाउ मेनी? 11 AM बैच, अच्छा। 2 PM बैच, एनीबडी? फेब बैच? सितंबर बैच कोई नहीं, चल ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज बेसिकली फॉर डिस्कसिंग अ जनरल टाइमलाइन। कुछ भी आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट्स हो रहे हैं, एनीथिंग विथ व्हाट काइंड ऑफ material to read, what should be the ideal timeline for starting the answer writing, reading newspapers, books, what all exams to target, क्योंकि mostly those who prepare UPSC, कुछ दिनों पहले तक की परसेप्शन था, let us say 3, 4, 5 years back, that you have to prepare just for UPSC. But now we are seeing that students are also diversifying along with UPSC, the state PSC also. One reason for this is that somehow the UPSC, the state PSC, they are aligning themselves along with UPSC. जैसे जम्मू कश्मीर PSC की बात करें, completely aligned with UPSC है। महाराष्ट्र का जो स्टेट सर्विस कमीशन है, that is going to be aligned with UPSC next year. UP PSC में I think they have removed the optionals and general study ethics paper, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इन BPSC optional have been made qualifying मेंस में, बाकी there is a greater overlap. Okay, we recommend कि along with UPSC कम से कम 2 स्टेट PSC टारगेट करना चाहिए। यदि आप केवल एग्जाम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं, साथ में कुछ एकेडमिक्स चल रहा है, so things may be difficult for you. But if you're just preparing along with UPSC, at least target 2 state PSCs. For example, those who are in UP, आप UP PSC और BPSC target कर सकते हैं। Those who are अलग अलग part of country में, it depends. क्यों जरूरी है? Because 85% of the things are going to remain same. Fundamental rights UPSC में 6 हैं तो उधर भी 6 ही रहेंगे, उसमें कुछ difficult होने वाला नहीं है। At various occasion, it will be the subset of the knowledge that you are going to get in UPSC. तो इसीलिए जरूरी है कि आप उस एग्जाम को दें, स्टेट PSC। Second thing is UPSC थोड़ा सा difficult है। If you go into the number, 11 lakh people applying, 6 lakh actually sitting for the examination, then 15,000 qualifying for mains, 2,500 qualifying for interview, and finally some 900 students, they are getting selected. Now relying just on one examination will not be practical. मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, 0.5 मार्क्स के चलते आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर, will you be waiting for next year for that prelims examination? There should be something in between to engage you, and there's once you have gained that particular knowledge, तो आपको उसको अप्लाई करना है, चाहे आप स्टेट PSC में करें, UPSC में करें, दूसरे स्टेट PSC में करें, it should be applied at that point of time. What will you do just to keep that particular stored knowledge? Giving you a real life example, आपके स्टेट की एक स्टूडेंट थी, she is not from political science, geography optional था उनका, and she is currently posted in UP only, Soumya Pandey, rank 4, from MNIT Allahabad, electrical engineering she did, geography optional था, first attempt में उन्होंने examination qualify किया, and she had also applied for UP PSC.
ये बात अलग है कि उनके सिलेक्शन होने के बाद यूपीपीएससी का इंटरव्यू लेटर आया, सो ऑफ कोर्स जरूर कोई जरूरी नहीं था, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि डोंट हैव दिस परसेप्शन दैट यूपीपीएससी इज समवॉट लोअर एग्जामिनेशन, इट इज ऑल्सो अ ग्रेड ए, और इसीलिए इन ऑर्डर टू एंगेज योरसेल्फ एटलीस्ट एक स्टेट पीएससी देना चाहिए. Now since most of you are targeting the year 25, मैंने जून बैच में लास्ट क्लास में एक आइडियल टाइमलाइन भी डिस्कस किया था. उससे पहले एक क्वेश्चन, कितने लोगों को अभी ऑप्शनल सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन है? दैट मीन्स आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया सभी लोगों ने, ऑप्शनल आपने नहीं सेलेक्ट किया अभी, आपने भी नहीं किया, ठीक है. सो फर्स्ट व्हेन यू are thinking of different optionals, so basically there can be 4 parameters you can look at. Selection of the optional थोड़ा ज़्यादा important इसलिए हो जाता है क्योंकि बेस्ट केस में आपको 2 साल बिताना पड़ेगा इस ऑप्शनल के साथ. ओके, एंड अगेन टू कोट अनदर टॉपर, कनिष्क कटारिया, he had mathematics optional and he said in one of his interview that for him mathematics was a stress buster, यानी बाकी पढ़ाई करके जब थक जाते थे तो मैथमेटिक्स करते थे. सो इट शुड बी अ सब्जेक्ट जिसमें यू कैन ड्वेल अपॉन, जिसको पढ़ने के बाद ऐसा ना लगे कि इसको 2 ही घंटे पढ़े, 3 ही घंटे पढ़े, दैट शुड रिलैक्स यू इन अ वे. सो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ जिनका वो सिलेक्शन ठीक नहीं रहता है, दे हैव टू चेंज द ऑप्शन. मेनी पीपल हु चेंज द ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल there's another IAS officer, currently he is the head of the Gorakhpur Development Authority, Anand Vardhan. He was ranked 7 of his time. 3 attempts he gave with, I think, public administration or geography. Then he changed the optional to political science. First attempt got through. All India rank 44 last year, Harsh Shukla. Chemistry optional did not work, political science worked through. So maybe if you are liking that particular subject, understanding हो रही है तो चीजें आसान हो जाती है. तो 4 पैरामीटर्स आपको कंसीडर करना है. फर्स्ट थिंग इज दैट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. जो भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट करें, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा तभी आपको सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करेगा. अदरवाइज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग यदि आप करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन पढ़ना नहीं है, इट्स नॉट जस्ट 2-3 मंथ्स, इट इज इन बेस्ट केस इट इज 2 years. एक द प्रिपरेशन ईयर, द अनदर इज एग्जाम ईयर. ये बेस्ट केस की बात कर रहा हूं, वर्स्ट केस में तो बहुत जा सकता है. तो इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट वो आप सिलेक्ट करें जिसमें यू शुड रियली बी इंटरेस्टिंग. सेकेंड इज आफ्टर इंटरेस्ट यू शुड सेलेक्ट एन ऑप्शनल जिसमें एक लेवल पे गाइडेंस शुड बी अवेलेबल. अब गाइडेंस अवेलेबल होगा तो कुछ लोगों को लगेगा सर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कोचिंग लेने की बात कर रहे हैं. सी, गाइडेंस लेने से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत रेडिकली डिफरेंट चीजें नहीं करती हैं. द ओनली थिंग दैट दे आर डूइंग इज कि द थिंग विच इज स्प्रेड अक्रॉस 1000 यूनिट्स, वो उसको 50 या फिर 100 यूनिट्स में लेके आ जा रहे हैं, और वो आपको दे दे रहे हैं कि आपका काम अब यहां से स्टार्ट कर रहा है. टीचर्स जब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बचपन से कुछ ज्ञान है. दे आर रीडिंग द 10 बुक्स सो दैट आपको उन किताबों को ना पढ़ना पड़े. दे हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जामिनेशन देन यू. So they will, यदि आप खुद से स्टार्ट करेंगे तो there are lot of mistakes that you will make, ठीक है, which you will realize in the later stage कि ये नहीं करना था. मैंने एक ग्राफ दिखाया था कि यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है, उसका ग्राफ है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इट टेक फॉर द सिलेक्शन, जिसमें अराउंड 9% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग सेलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. जो मैक्सिमम सिलेक्शन हो रहा है वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में हो रहा है. उसके बाद the graph is going down. So जो सबसे optimal level of selection है वो second and third attempt है. Why this is happening? Multiple reasons for that. One reason is कि first attempt में आप बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करना था, जैसे reading 2 newspaper, reading too many books, okay, following every magazine, every websites and all, वो नहीं करना था. वो आप realize करते हैं, and then the same student he is getting selected in second and third attempt. So a good teacher or a good institute what it does is कि चीजों को consolidate करके आपके पास लेते आता है, and आपका जो effort है उसके बाद start होता है.
Third thing is that there should be overlap between the optional that you choose and the general studies. Needless to say, the maximum overlap minimum would be your effort. तो सेम 24 आवर्स सबको मिले हैं. अब दो ऑप्शनल हो सकते हैं. लेट अस से मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज, आपको पता है ऑलमोस्ट जीरो ओवरलैप. On the other hand, there are certain subjects like history, geography, political science, sociology, जिसमें कि there is an overlap, you can dwell upon that. जितना ज़्यादा overlap रहेगा, things would be easier for you. And fourth thing is results. क्योंकि ultimately तैयारी किस लिए कर रहे हैं? सिलेक्शन के लिए. नॉलेज के लिए बस ऑप्शनल पढ़ना था तो पीएचडी मास्टर्स आप कर सकते थे. सिलेक्शन के बाद कोई किताब उठा के पढ़ता नहीं. ठीक है, वो कम से कम 2 महीने तक दूर हो जाते हैं जब तक लबासना नहीं पहुंचता. सो यू आर डूइंग दिस फॉर द सिलेक्शन. तो अल्टीमेटली सिलेक्शन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से. सो व्हेन यू आर सेलेक्टिंग एनी ऑफ द ऑप्शनल, आपको ये 4 पैरामीटर ध्यान में रखने हैं. योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एंड दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ज्यादा है, इंटरेस्ट नहीं है तो आप लिखने. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट, देन गाइडेंस, overlap, and then the results. Now, since I am teacher of political science, so I'll be telling that how political science is a good optional across these 4 parameters. ठीक है. Interest ये आप decide करेंगे कि आपको interest है कि नहीं. For that, go through the syllabus of political science to know that what UPSC wants you to read. And go through the PYQs to know that what UPSC is asking. तो जैसे आप syllabus उठाएंगे, so in 1A we have to study about the Western political thought, ideology. We have to study about the Indian political thought. 1B में Indian government and politics पढ़ना है, constitution, nationalism, role of religion in Indian politics, party system, social movement, ये सारी चीजें पढ़नी. पेपर 2 सेक्शन ए में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, प्राइमरली ये पढ़ना है. पेपर 2 सेक्शन बी में इंडिया एंड द वर्ल्ड. सो पेपर 2 इज इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट एक्सेप्ट फॉर द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेक्शन. सो दिस इज द रफ सिलेबस. डिटेल्स यू कैन गेट फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट. नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, सिलेबस मिलेगा आपको. पीवाईक्यूज पढ़ के आप ये देखें कि यूपीएससी एक्चुअली पूछ क्या रहा है. सो बाय दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट है. गाइडेंस, अब इसमें कह सकते हैं और कहेंगे भी कि शुभ्रा रंजन आईएएस की मोनोपोली है. और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल हमारे 113 सिलेक्शंस हैं. सो 113 सिलेक्शंस यदि पीएसआईआर से हैं, और इससे ज़्यादा कोई सिलेक्शन पीएसआईआर से है नहीं. यदि आउट ऑफ 900 समथिंग जो 933 सेट थे, उसमें से 113 सिलेक्शन जो हैं हमारे पीएसआईआर के स्टूडेंट्स के हैं. 1-2 लोग और होंगे जो कि select हुए होंगे, but there is a monopoly of PSIR. This is the only optional wherein you can say that this lot is coming from one particular institute. Otherwise, other optionals are also good in terms of selection. यदि 4th parameter की बात करें, results, anthropology, sociology, ठीक है. Other than geography is not that good now. पहले था. History is also not that good. Basically, along with political science, it is sociology, anthropology, जो कि public administration भी अब उतना नहीं है जितना पहले था, जो कि they have good number of selection. But there is no one particular institute जहाँ से इतने सारे selection हो. In fact, last year जो the student who gave interview were 293. So somehow 3000 students, we had 2900 students giving mains, जिसमें से 293 they gave the interview. And final selection was 113. So if here at Shubhra Ranjan IAS you are writing mains test paper and you are getting your ranking, that is very much symbolic of what you are going to get there. In fact, जो mains paper होता है उस दिन optional wise बैठाया जाता है students को, and you will find that most of your classmates would be sitting in that particular hall. So somehow things are working. For political science we give that particular solution. इसका एक रीजन ये भी है जिसके चलते हम लोग बदनाम भी है कि हम लोग क्लासेस बहुत ज़्यादा लेते हैं. ठीक है, वी टेक लॉट ऑफ क्लासेस. हमारे कोर्सेज थोड़े 8 महीने तक खिंच जाते हैं, 9 मंथ्स तक भी चले जाते हैं, जिसके चलते हमारा क्रिटिसिज्म भी होता है. बट
This is the only reason that we have sustained it good result. The moment इसको compress करके, एक तो political science बड़ा optional है, इसको यदि compress करके हमने कम में किया तो आज नहीं कल नहीं, but from after 3 years results will start going down. ठीक है, so it will benefit if we compress this course को कम करके लाते हैं तो commercially it will be beneficial for us. ठीक है, but वही है कि in long terms it will create problem. So somehow things are happening. After 2013 particularly in mains you will not find even a single question जो कि नोट से बाहर का है. ठीक है, आप कह सकते हैं नोट्स भी सर आप बहुत बनवा देते हैं, लेकिन फाउंडेशन कोर्स है ना, वो आप एक ही बार करेंगे. टेस्ट सीरीज आप हर एक अटेम्प्ट में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले अटेम्प्ट में आप नया फाउंडेशन कोर्स करेंगे. सो दैट इज वन टाइम एफर्ट जो आपको देना पड़ेगा, समय उतना देना पड़ेगा. ठीक है, बट ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू हेल्प, अदरवाइज things can be problematic. Overlap. Political science is the only optional having maximum overlap. General studies 1, national movement, post-independence India, world history, Cold War वाला पूरा फेज की बात करें. ठीक है, इंडियन सोसाइटी के कुछ चीजें होती हैं जो कि इंडियन सोसाइटी से भी ओवरलैप करेगी. GS2 85% ओवरलैप है. एंटायर पॉलिटी, एंटायर इंटरनेशनल रिलेशन इज ओवरलैप. गवर्नेंस वाले पार्ट में आपको सेपरेटली मेहनत करना पड़ेगा. GS3 में भी माइनर ओवरलैप है, फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन एंड ऑल. GS4 इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. पूरा का पूरा जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट सीधे क्वेश्चन आ जाता है. एथिक्स में क्वेश्चन आया था, सोक्रेटिस का स्टेटमेंट था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. ये स्टेटमेंट हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. गांधी से क्वेश्चन आ जाता है, अंबेडकर से क्वेश्चन आ जाता है, रॉल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन आ जाता है. So in ethics it is going to help you a lot, especially in the concept part of it. Case studies तो factual होता है, analytical होता है. Essay it is going to help you a lot. आप essay के लिए separately नहीं पढ़ते हैं. Essay का जो knowledge आता है primarily general studies या फिर आपके optional से आता है. If you see the test papers of toppers like Tina Dabi, they have used their knowledge of political science in the essay paper comprehensively. In fact, there was another student, Vikram Griwal, history optional का था. Similarly, he has used his knowledge of history optional into the essay paper, and he had got 155 in essay. That was, I think, country highest at that point of time. So the optionals, the PSIR optional will help you a lot in the essay paper, especially when now the philosophical essays are being asked. Again, pol science will help you at the interview stage. Because आप चाहे किसी ऑप्शनल के रहें, there are 3 areas from which question will definitely come other than DAF. एक तो DAF से आता ही है, और the question would be on economy, international relation and politics. Now if you have read political science, except for the economy, IR के question और politics के question पे आपकी बेहतर understanding रहेगी. If you are getting selected, even political science, particularly the Indian government and politics, and if you are opting for the foreign services, then the paper 2 is going to be particularly important in your training in the academy at Labasna or at different जो services की training होती है वहां भी important होने वाला. So what I want to say is कि there is greater overlap which compensates for the fact that PSIR is a big optional. So had there been no overlap, जैसे मैथमेटिक्स एक बड़ा ऑप्शनल भी है, ओवरलैप भी बिल्कुल ही नहीं है, बट since it is having overlap, it is compensating that PSIR is a big option. And when it comes to selection, somehow optional has been giving a constant number of selection. It has not fluctuated. It has not gone very up like optionals like anthropology. जो मैंने लिस्ट में बता रहा था उसमें एक एंथ्रोपोलॉजी भी जोड़ लिया. I think I told sociology, anthropology, इतना ही बोला था ना. और so anthropology is also good optional. Good thing is smaller syllabus and selection is quite good there also. So optional like anthropology, like they have sort up. ठीक है, optionals like public administration, it is losing its sheen. History optional used to be one of the most favorite optional at some point of time. All the very brightest of the students, they would opt for the history optionals. But somehow, of course, in the last year rank 1 was from history, but that number of selection is not happening. Okay. So pol science, sociology, anthropology, these are 3 optional जो कि एक level of they are giving good number of selection as such.
So if you want political science, this should be the reason for you to select this particular optional. एक डाउट ये आता है कि वी आर फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, एंड हो सकता है बहुत लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी होंगे, वो आर थिंकिंग कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ऑप्ट किया जाए. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है. रीजन इज आप ग्रेजुएशन लेवल तक कॉलेज में जो पढ़ते हैं यूपीएससी के किसी काम का नहीं है. ठीक है, इन द आंसर राइटिंग सेशन दैट वी वर डिस्कसिंग, द नोटिफिकेशन ऑफ द यूपीएससी सेज दैट in general studies paper, any well read person, any person who is aware, ठीक है, will be able to answer the question asked in GS, any well read person. But this is not true, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं any well read person cannot answer without notification. कहता है कि you don't require to have a well specialized study for that, but जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको specialized study करना पड़ेगा. For optional, notification says that you require a knowledge higher than the graduation, lower than the post graduation level. Again, this is not true. Many of graduation तो सभी आ ही रहे, many of the students who are post graduated, most of them, many who are doing PhDs, there have been also some students who are already teaching in some universities and they are also attending the classes for their selection. So what happens is that this is a competition. ऐसा नहीं है 60% से ऊपर आया तो फर्स्ट डिवीजन या फिर से, ये कंपटीशन है. यदि आपने एक आंसर लिखा, किसी और ने आपसे बेहतर लिखा, he will get a better rank over that. And the fact is that यदि यूपीएससी 1000 सीट्स निकालता है तो आप जो compete कर रहे हैं फर्स्ट टाइमर्स जो है, they are competing for 600 सीट्स. एंड दिस इज ऑफ कोर्स, अभी मैंने रिजर्वेशन वगैरह का नहीं कहा, इसमें फैक्टर इन किया, क्योंकि 40% लोग वो होंगे, मतलब 40% नंबर में तो नहीं होंगे, बट इफेक्टिवली देखा जाए तो दोज हु आर राइटिंग द एग्जामिनेशन फॉर इंप्रूवमेंट, सो नंबर उनका कम रहेगा, बट अगेन दे आर द प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन. सो उनका लेवल ऑफ नॉलेज जो है ऑप्शनल का ऑलरेडी एक लेवल पे है. सो इट्स क्लियरली अ नॉलेज विच रिक्वायर ऑफ ग्रेटर देन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. सो यदि आपने ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन नहीं किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू अ प्रॉब्लम. इफ यू हैव डन, टेक इट एज अ मैटर ऑफ कंफर्ट कि आपको प्रीमाइस पहले से पता है, सो यू विल नॉट बी स्टार्टिंग एट द जीरो लेवल. बाकी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल लर्न इन द क्लास, एंड दैट्स व्हाई in results also many people from non-political science background also qualify. Utkarsh Dwivedi, rank 5, he was an engineer from VIT, mechanical engineer. ठीक है. Navneet Maan, country highest in political science, again engineer from Delhi College of Engineering. So many people, in fact all India rank 6 Vishakha Yadav, again an engineer. So I'm not saying कि engineers have more advantage, but it is distributed uniformly across. तो आप, दिस शुड नॉट बी अ फैक्टर, बिकॉज क्या होता है कि लोग आते हैं इस बैकग्राउंड के साथ और उसी परसेप्शन के साथ रहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम पॉल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एज सच. ठीक है. नाउ आई विल जस्ट एक बार ब्रीफली आई विल डिस्कस यू विथ यू द टाइमलाइन, देन आई टेक सम क्वेश्चन. यहाँ पे सर एसी ऑफ है क्या? गर्मी लग रही है. एसी है ही नहीं क्या? हाँ सर, एक बार चेक करवा लीजिएगा. हाँ, एसी नहीं है क्या? नहीं है? अच्छा वहां पे. चलो, कोई डाउट यहाँ पे? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो. ऑप्शनल से रिलेटेड कोई डाउट? एनीथिंग? ठीक है. तो जब एक बार ऑप्शनल सिलेक्शन हो गया आपका और आपने 25 को टारगेट करने का सोच लिया है, तो आपके लिए 2 माइलस्टोन्स अभी आ रहे हैं. एक तो आपको मेंस देना है. मेंस यू हैव टू गिव इन अगस्त 2025. प्रीलिम्स आपका होगा मई 2025 में. फेब 2025 से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी, और आज हम बात कर रहे हैं 25 अगस्त को. आपके पास ये जो नेक्स्ट 5.5 months है, दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर योर प्रिपरेशन यदि आप 25 को टारगेट कर रहे हैं तो, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर टाइम आपको मेंस की तैयारी कंप्लीट करनी पड़ेगी.
यूपीएससी के प्रिपरेशन का मतलब होता है मेंस का प्रिपरेशन। क्यों? बिकॉज यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन जिसका टोटल मार्क्स कितना है? कितना है टोटल मार्क्स? 2025, जिसमें इंटरव्यू के कितने हैं? 275, है ना? तो मेंस के 1750 मेंस के हैं, जो कि 86.5% सारे मार्क्स वेटेज का होता है। 86.5%, ये केवल मेंस से आ रहा है। मेंस का मतलब क्या है? मेंस का मतलब है 7 पेपर्स, टोटल 9 होते हैं, 7 काउंट हो रहे हैं। 7 पेपर्स मीन्स व्हाट? 7 into 3, 21 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग। यानी यूपीएससी आपको कैट एग्जाम की तरह 3 घंटे से नहीं जज कर रहा है, प्रीलिम्स 2 घंटे से नहीं जज कर रहा है, इंटरव्यू आधे घंटे से नहीं जज कर रहा है। इट इज जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ 21 आवर्स। यानी 21 आवर्स में आपने वो क्वालिटी प्रोड्यूस किया है, तब यूपीएससी आपको सेलेक्ट करेगा। सो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 7 पेपर्स की कर रहे हैं, यानी आप तैयारी कर रहे हैं आंसर राइटिंग की। यदि एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सिलेक्शन इज आंसर राइटिंग। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया और वो क्वेश्चन नहीं कर पाए जो एग्जाम में पूछा गया था, क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। और मान के चलो कि बाय एनी मींस आपको वही 20 क्वेश्चन पता चल गए जो यूपीएससी में आने वाले हैं, तो बाकी पढ़ने का फायदा क्या? उसमें तो आप वही लिख के जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। सो इट्स अबाउट द आंसर राइटिंग एंड दीज 7 पेपर्स। ये आपका सही है तो प्रोबेबली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन अ बेटर वे। तो इसीलिए the moment you start your preparation, after 1 or 2 months you have to practice the answer writing. उसके बिना selection होना थोड़ा difficult है, it's almost impossible. Okay. And this time आपको अभी आंसर राइटिंग ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा प्रीलिम्स पे फोकस रखेंगे, जो कि आपका फेब से लेके 26 मई 2025 तक होगा, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। Why I say कि सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए? क्योंकि ड्यूरिंग दिस फेज you are not getting time to study new things. Prelims और मेंस के बीच में आपको 90 डेज मिल रहे हैं, effectively 20 डेज माइनस हो जाता है because of various reason, तो you have some 70 डेज, यानी पर पेपर आपको 10 डेज मिल रहे हैं प्रिपरेशन का। तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। If you are seriously preparing for 2025, आपको इस टाइम में करना पड़ेगा, and you have to do the answer writing at this point of time. When you are preparing, कुछ चीजें तो ध्यान में रखनी है, that PYQs को हमेशा अपने साथ रखना है। There are 2 things, syllabus and PYQs. Syllabus के बाहर जाने की जरूरत नहीं है and you will not be able to go. If you are going, you are wasting your effort. Second thing is PYQs, और ये optional के regarding ज्यादा important है। Options में question repeat होते हैं and you realize it only after 2 attempts कि मैं फालतू में बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था, जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो why I am not reading this. Now this is a uniform characteristic across all the toppers who are getting selected, that they are very practical in their approach. आपके शहर से ही हैं, ऑल इंडिया रैंक 15 कुणाल रस्तोगी, he is also from PSI or optional. फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचे, सेकेंड अटेम्प्ट CSAT नहीं निकला, प्रीलिम्स में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट रैंक 15, थिंग्स वर्क वेल। ठीक है, हिज डैड इज आल्सो इंडियन पुलिस सर्विस इन त्रिपुरा कैडर। नाउ ही ऑल द टॉपर्स से कि सर माय अप्रोच वाज PYQ स्पेसिफिक, क्योंकि PYQs रिपीट हो रही है। सो PYQs आपको हमेशा अपने साथ रखना है, पॉलिटिकल से जो भी ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू डू द आंसर राइटिंग। एनी प्रिपरेशन, नाउ वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एट दिस स्टेज ऑफ द एग्जाम यदि आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, दैट आई कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आपसे पहले जो सेशन था वो उन स्टूडेंट्स का था जो मेंस दे रहे हैं इस बार, कोई सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कोई फोर्थ टाइम भी मेंस दे रहा है। एंड एक प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी प्रिपेयर देन देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्या होता है कि हो सकता है आपने नक्सलिज्म ये टॉपिक
आपने नोट्स बनाए इसके, नोट्स बनाने के बाद आपको 2-3-4 दिन बाद पता चल रहा है कि नक्सलिज्म का नोट्स ऑलरेडी मेरे पास था और मुझे पता नहीं था या फिर याद नहीं था मेरे को. So this results into duplication of efforts. Now, if you do this process of indexing right from the start, you are going to save a lot of your time. अब indexing है क्या? So basically, general studies के जो भी 4 पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4 और जो भी optional का पेपर 1 और optional का पेपर 2 है, prepare index of that. आपके syllabus में जो points लिखे हैं, जैसे GS1 में पहला point लिखा है, मान के चलो कि आर्ट एंड कल्चर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ट्राई टू इमेजिन कि आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि यूपीएससी बस आर्ट एंड कल्चर लिख देगा, वो मौर्यन गुप्तन ये से नहीं बताएगा. तो उसमें आपने क्या किया, आपने सब पार्ट्स लिखे इंडेक्सिंग में कि मौर्यन आर्ट एंड कल्चर, गुप्ताज, मुगल्स, ब्रिटिश, कुछ ऐसे कर देते. नाउ यू विल सी कि वेयर इज माई कंटेंट ऑन मौर्यन स्कूल ऑफ आर्ट, मैं उसको कहां से पढ़ूंगा. तो आपने देखा कि मैंने क्लास किया था, क्लास नोट्स, लेटर से हिस्ट्री क्लास नोट्स, पेज नंबर 72 हिस्ट्री क्लास नोट्स, आपने उसकी इंडेक्सिंग कर दी. इट मींस दैट फ्रॉम नाउ टिल योर सिलेक्शन आप मौर्यन स्कूल ऑफ आर्ट केवल यहीं से पढ़ेंगे. दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ मिस्टेक दैट द एस्पिरेंट्स मेक. दे विल हैव द नोट ऑफ द सेम टॉपिक एट 5 प्लेसेस. आई एम टेलिंग यू, 5 जगह हो जाता है एक चीज का नोट्स, और वो भी किसका होता है, फर्स्ट चैप्टर का. आप जोश में आते हैं, GS1 आज से स्टार्ट करना है, आप सीधे स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, और वो जोश खत्म हो जाता है 20 दिन में. फिर पॉलिटी में जोश आ जाता है, वहां पे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं मन के नहीं हिस्ट्री से करेंगे, फिर आते हैं, फिर वही स्टार्ट करते हैं. एंड दिस वे यू आर नॉट एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स योर सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर इज दिस पर्टिकुलर प्लेस. सिमिलरली आपने देखा गुप्ता आर्ट एंड कल्चर कहां पे लिखा हुआ है. सो ये मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, एनसीईआरटी पेज नंबर 83, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर सोर्स. नाउ गोइंग फॉरवर्ड व्हाट विल हैपन, दैट सपोज यू आर रीडिंग एनी इंस्टीट्यूट्स मॉडल आंसर. आपने टेस्ट दिया, आप मॉडल क्वेश्चन आया था मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर पे, आपने टेस्ट लिखा. नाउ यू आर गोइंग थ्रू द मॉडल आंसर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. व्हाट यू विल डू, आप सीधे अपने इंडेक्स पे जाएंगे, आपने देखेंगे कि आपका वो मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर है, वो इस जगह पे. यू विल गो एंड रिवाइज दिस एंड देन रीड दिस मॉडल आंसर. बेनिफिट वुड बी दैट आप ये पाएंगे कि ओनली 10% और 5% ऑफ द थिंग्स आर न्यू. बाकी आपके नोट्स में ऑलरेडी था, आपको नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी था. आप क्या करेंगे कि ये जो 10% है अपने नोट्स में ऐड करेंगे एंड यू विल स्ट्राइक दिस डाउन. फायदा क्या हुआ, आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो इंप्रूव हुआ, इट इंप्रूव्ड. एंड सेकेंडली यू अवॉइडेड द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जो कि अलग से हो जाता. एंड सिमिलरली इफ यू डू इट फॉर एवरीथिंग द क्वालिटी ऑफ द नोट्स इज इंप्रूविंग एंड वो डुप्लीकेशन नहीं हो रहा. नाउ लेट अस से आपने कोई मॉडल आंसर पढ़ा, देयर कैन बी ओनली 2 सिनेरियोज फ्रॉम हियर. या तो होगा कि आपने कभी उसको पढ़ा नहीं होगा, कभी नहीं पढ़ा, जैसे रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नैनोटेक और हाउ कैन नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये एक ऐसा थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस नैनो टेक्नोलॉजी का, जो कि आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है. नाउ GS3 में टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें सब टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी. वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि AI एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट थीम, क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट विल यू डू कि आप यहां पे गए साइंस एंड टेक, नैनो टेक्नोलॉजी, एंड देन आपने वहां पे एक सब टॉपिक लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपने यहां पे लिख दिया मॉडल आंसर. यू डोंट हैव टू ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ठीक है, आपने बस वही लिख दिया कि मॉडल आंसर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस. और देयर कैन बी अ सिनेरियो जिसमें आधा चीजें पता है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं. Now, if you do this, somehow things are going to improve a lot for you. और ये हेल्प करेगा. आपको आज करना पड़ेगा, बेटर होगा कि आप एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन करें, बेहतर होगा. अदरवाइज फिर सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में ये चीजें करने, बिकॉज जस्ट ट्राई टू इमेजिन योर सिचुएशन वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन. जो मेंस लिखने वाले हैं, अभी 25 दिन बाद मेंस होने वाला है, मेंस से 5 दिन पहले उनको चाहे कितना भी पढ़ाओ,
एक चीज चाहिए होता है, दैट इज नोट्स, कि जिसको तुरंत पढ़ के आपने प्लेटो पे पूरा नॉलेज पीएचडी कर दिया प्लेटो पे, बट प्लेटो पे क्वेश्चन आया 15 मार्कर जो कि 3 पेज का है, यू हैव टू राइट दोज 3 पेजेस विद इन 9 मिनट्स। आप पूरा ज्ञान नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, you want that written in that particular format and you will be writing. So it's very important that you do it from now. Things will be better for you, otherwise I think things can be difficult. Prelims ke specific, it is required that by solved paper 25 years का आता है, and जिस दिन आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, do the PYQs करने के बाद ही आप you can say that that particular topic is complete. प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो। ओके, मेंस का जो प्रोसेस है इट इज क्वाइट सब्जेक्टिव, बहुत लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। आपको लगेगा इस बार इस पेपर में ज्यादा मेहनत किया और उस साल उसी पेपर में कम आ लिया, एंड दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स। एक स्टूडेंट है, ऑलरेडी ही वाज IRS, करेंटली इज इनटू पुलिस सर्विस, अभी फिर से एग्जाम दे रहा है फॉर IAS, अभिषेक वशिष्ठ। फर्स्ट अटेम्प्ट 280s में आया पॉल साइंस में, नेक्स्ट अटेम्प्ट 300 आया, उसके बाद 271 आया, फिर 251 आया, अभी वो लास्ट अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अब नथिंग एक्सप्लेन्स दिस, ठीक है, इस अटेम्प्ट में IRS बना, इसमें IPS बना, क्योंकि इस साल GS में स्कोर उसके थे 447, यदि ये स्कोर यहां पे आ गया रहता तो IAS हो गया रहता। नाउ नथिंग एक्सप्लेन्स कि कोई सेलेक्टेड बंदा 2 बार सेलेक्टेड है, व्हाई देयर शुड बी अ डिक्लाइन इन द पॉल साइंस, बट हो रहा है डिक्लाइन, इट्स अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, कुछ भी नहीं कह सकते क्यों नहीं हो रहा है। लास्ट टू लास्ट ईयर रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, NIT इलाहाबाद से पढ़ा, फ्रॉम अयोध्या, दैट पर्टिकुलर रीजन। थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 264 मार्क्स, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 243 समथिंग, एंड देन इन द थर्ड अटेम्प्ट 295। नाउ नथिंग एक्सप्लेन्स दिस, एंड ही सेड कि इस अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मेहनत किया था जब 243 आया, इस अटेम्प्ट में कुछ खास मेहनत मतलब उतना नहीं था जितना पहले कर रखा था। So such subjectivity will always remain, whether at the prelims, whether at the mains or at the interview level. There are people जिनका जब first attempt में selection होता है, the person got somewhere around 195 in interview. जब next दिया for improvement के लिए जब दे रहा था, he was already into the revenue services. His score fell, it came to 145 something. अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्या ये कंक्लूड किया जाए कि IRS की ट्रेनिंग के बाद उसकी पर्सनालिटी और गिर गई तब, क्योंकि ये तो पर्सनालिटी टेस्ट है ना, क्योंकि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते कि थिंग्स विल हैपन इन अ लीनियर मैनर, सो इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। आप इस प्रोसेस में आए हैं, एंड इफ यू आर थिंकिंग, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि आपकी जो तैयारी हो थोड़ी ब्रॉड बेस्ड हो। होता है ना कि यदि 11 प्लेयर में से सब नहीं चले तो कोई तो चलेगा, तो इफ GS1 does not fire, GS2 will fire for you. If GS2 is not firing, at least ethics will fire for you. At least essay will fire for you. And for certain people, things can take more time also. Now this year, out of the total 113 selections that we had, if you ask me, the most iconic selection this year was All India rank 83. Shubhadarshini from Tamil Nadu. It was her 7th attempt. पहले 7th attempt में हुआ वो, of course, perseverance है कि 7th attempt तक कोई जाता है, and that also probably I mean stereotyping, but being a girl in our society, and credit goes to the parents जिन्होंने इस बात में विश्वास रखा कि things will work out. पहले 6 attempt में prelims भी नहीं हुआ, और इस 6 में से 3 अटेम्प्ट में CSET के चलते प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे शी वाज गोइंग टू लबासना, उसने स्टेटस लगाया था, इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ 1 डे, रादर इट्स जर्नी ऑफ 9 years. बट समहाउ होम कैडर, IAS तमिलनाडु कैडर मिल गया, तो थिंग्स जो है वो स्क्वायर अप हो जाती, तो उतना पीछे वाला जर्नी सब कोई भूल जाता है। नॉट सेइंग कि सबके साथ ऐसा होता है,
but it's important, the exam will test you. सबसे if it is giving you a lot, it will test also. इतना आसान रहेगा. Different बहुत सारे examples हैं. Last year one rank 175, Natasha Goyal, 4 attempt no prelims, 5th attempt 175, currently into the Indian Police Service. तो वो चीजें हैं. The only objectivity that you can get into this ever subjective process is by practicing a lot. ठीक है. It's almost like a game of cricket. कोई जरूरी नहीं कि आज आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया है कि कल रन मार के आएंगे, लेकिन हाँ इसके चलते कल आपका रन नहीं लगा, आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकते. ये क्यूमुलेटिवली चीजें जो है ना, एक दिन नीरज चोपड़ा सिल्वर लेके आते हैं या फिर जो पाकिस्तान के थे वो गोल्ड लेके आते हैं तो लोगों को लगता है अरे जीत गया. ऐसा थोड़ी कि एक दिन अचानक गया उठ के फेंक दिया उधर. या फिर इंडियन क्रिकेट टीम जीत के आती है तो लोग सेलिब्रेट करते. इट विल टेक टाइम. तो if you are entering into this journey, be prepared, और if you are into this journey, be 100%. वो आधा अधूरा वाली बात नहीं रहनी चाहिए कि बस तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, giving yourself a false comfort. It's an absolutely false comfort if you're not writing answer and believing that some magic will happen. And how do we select that magic? हम कुछ examples उठा लेते हैं. ये रैंकर था, इसने भी तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, इसका तो टॉप 10 में आ गया. ये था, इसने भी तो नहीं की थी, ये टॉप 50 में आ गया. सो वो आपके पास टाइम है तो आप करो. ठीक है. तो दिस इज क्रक्स ऑफ दिस जर्नी. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक ऑप्शनल्स, आंसर राइटिंग, यू कैन आस्क. आइडियल टाइमलाइन आपके लिए यही होने वाला है जो मैंने बताया. और इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सम आंसर, आई कैन गिव यू क्वेश्चन यदि करना है तो. यदि आपकी तैयारी शुरू हो गई है, प्रिपरेशन. जनरल स्टडीज कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना? आपने स्टार्ट कर दिया. जनरल स्टडी. ऑप्शनल आपने स्टार्ट कर दिया. ठीक है. क्वेश्चन करना है, आंसर लिखोगे कुछ? नहीं, नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है. तो कुछ सब नहीं, ओवरलैपिंग में नहीं करो ना, एक चीज एक ही जगह से पढ़ोगे ना. जैसे यदि बेसिक स्ट्रक्चर आपने पेपर 1 सेक्शन बी जो PSIR है उसका पेपर 1 सेक्शन बी में हमें बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें GS पेपर 2 में भी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है. तो दोनों जगह क्यों पढ़ना है? आप यहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर का बना लो. फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर यू राइट. आपका ऑप्शनल क्या है? इज इट पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस. See, that's what I'm telling you. Source is not important. Information is. For example, coaching has provided. Coaching में आपको NHRC पढ़ाया गया. ठीक है. NHRC आपने क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके जो चैलेंजेस हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया. नाउ यू रीडिंग लक्ष्मीकांत, जिसमें 90% चीजें सेम रहेंगी, इजंट इट? 10% अलग रहेगा. तो आप उसको नहीं पढ़ना है, उसको आप पेज पे लिख के उस कोचिंग नोट्स के साथ अटैच कर लें. या फिर जहाँ पे NHRC के अचीवमेंट्स लिखे गए हैं, आपको लक्ष्मीकांत में 2 और नए अचीवमेंट्स जानने को मिले, आप अपने नोट्स में लिख दे. देन स्ट्राइक दैट पर्टिकुलर थिंग डाउन इन लक्ष्मीकांत. डोंट स्टडी फ्रॉम देयर. सो दिस इज हाउ यू कैन मूव. सिमिलरली लेट अस से आपको ऑप्शनल में भी आपने पढ़ा, ऑप्शनल में जुडिशरी से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक टॉपिक पढ़ा आपने. सेम चीज आपने देयर वाज एन आर्टिकल इन द कोई भी मंथली मैगजीन जो आप रेफर कर रहे हैं, वहां पे भी एक आर्टिकल आया है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वही कोलेजियम सिस्टम एंड ऑल. आपको पता है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस पेपर 1B में ये ऑलरेडी कर रखा है. यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर पेज, रीड इट, देन यू विल रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. Then you will read this particular article. Now, if only add those points, आपको इसमें हो सकता है कुछ 5% चीजें नहीं मिलेंगी जो कि आपके नोट्स में नहीं थी. You add it there and strike this particular down. तो इससे क्या होगा कि that notes is improving. ठीक है. और there's nothing like कि ये मैं ऑप्शनल के लिए पढ़ रहा हूँ, ये मैं GS के लिए पढ़ रहा हूँ. नॉलेज इज नॉलेज. आर्टिकल नंबर तो सेम रहेंगे ना,
जो सुप्रीम कोर्ट केसेस रहेंगे वो सेम रहेंगे। जनरल स्टडीज में बस ये होगा कि आपको थियरी नहीं लिखना है वहां पे, या फिर एनालिसिस नहीं लिखना है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट चीजें बहुत डिफरेंटली पूछी जा रही है। नक्सलिज्म प्रॉब्लम सबको पता है, व्हाट इज नक्सलिज्म और क्या है, बट चैलेंज इज कि उस 9 मिनट्स में आपको नक्सलिज्म से जुड़े सारी चीजें लिख देनी है। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ नक्सलिज्म, व्हाट इज द फिलॉसफी, कहां से ओरिजिन हुआ, किन फेजेस में नक्सलिज्म इवॉल्व होता है, रीजंस बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म। फिर आपको 2 मैप ड्रॉ करने होंगे। आई थिंक yesterday there was a statement from Home Minister that by 2026 नक्सलिज्म would be finished। ठीक है, तो आपको एक लेटेस्ट से 70s का मैप ड्रॉ करना होगा, एक प्रेजेंट मैप ड्रॉ करना होगा, जिसमें रेड कॉरिडोर्स बताने होंगे कि कैसे रेड कॉरिडोर्स डिक्लाइन हो गए। अब यदि आपको लगता है कि ये सीधे मैं एग्जाम हॉल में जाकर ड्रॉ करूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको नोट्स में करने पड़ेंगे एंड दैट हैज टू बी रेप्लिकेटेड इन द एग्जामिनेशन। So somehow this kind of indexing is basically just giving you कि आपका कौन सा notes कहाँ पे है, and then you'll have to refer to that particular notes. Preferably ये जो index आप बनाएंगे वो online बनाएं Word में, because it will always keep on extending. Let us say आपने art and culture वाला ये topic पढ़ा, उसमें you came across an article, newspaper आप पढ़ रहे थे, उसमें बहुत अच्छा एक article आया which is talking about how has the printing of money evolved throughout the history of India, कि different phases में जो money printing होती थी। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं वो सब पढ़ेंगे, लेकिन जब इसको आपको 9 मिनट में 3 पेज पे लिखना होगा ना, तो अचानक से सारी चीजें याद नहीं आएंगी। सो इसके लिए आपको जरूरी है कि एक ही सोर्स से आप उस चीज को बार बार पढ़ें। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड मसल मेमोरी, बहुत बार आप सुनेंगे मसल मेमोरी। मसल मेमोरी ये चीज होती है कि जब आप लिखते हैं या फिर याद करने की कोशिश करते हैं, सो द पिक्चर अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड व्हेन दैट थिंग इज हैपनिंग, योर हैंड राइटिंग स्पीड विल गो एट नेक्स्ट लेवल। मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेन कि सर पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता है, 20 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं हो पा रहे। इट्स नॉट दैट यू आर राइटिंग एट अ लेसर स्पीड, आपने इतने सारे एग्जाम्स पास किए हैं, सब में आपने पेपर कंप्लीट किए थे। हियर यू आर टेकिंग टाइम टू थिंक, सोच रहे हैं, सोचने में समय जा रहा है। यदि क्वेश्चन केवल सिंपली ये रहे कि राइट नेशनल एंथम, तुरंत लिख देंगे सब कोई, हो सकता है उसमें से 80% लोगों को नेशनल एंथम इंटायर मीनिंग भी नहीं समझ में आता है, बट एवरीबडी इज राइटिंग ऑन टाइम। व्हाई? बिकॉज दैट इज समहाउ मग्ड अप, हमने किया। दिस एग्जामिनेशन इन वेरी क्रूड टर्म, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ मगिंग अप। ठीक है, आप रट्टा लगा लें, पढ़ के वहां पे जाके लिख लें, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद टॉपर स्टॉक में आप बोलिएगा कि हम वहां पे जाके एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, कि मेरे सामने क्वेश्चन आया, रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, देन आई एनालाइज्ड एंड देन आई रोट। एनालिसिस में तो पूरा समय निकल जाता है। सो यू कैन नॉट, एनालिसिस हैज टू बी मग्ड अप एंड इट हैज टू बी रिटन देयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वो जो ड्यूरेशन है ना, इफ यू आर थिंकिंग इन द पेपर, यू आर रिस्किंग टू लूज अ क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड। समय आपके पास बहुत ज्यादा कम है। सो समहाउ दैट, एंड इफ यू वांट थिंग्स टू बी इन योर माइंड, एक तो चीजें लिमिटेड होनी चाहिए और फ्रिक्वेंटली रिवाइज होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू एट दिस स्टेज ओनली। क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन, एक और चलता है काफी, कहा जाता है कि एग्जाम यूपीएससी इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ एटीट्यूड। मतलब सुनने में अच्छा लगता है ये, अगेन क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर ऑरा अराउंड यूपीएससी, that it is not the examination of knowledge, rather examination of attitude। और क्वेश्चन आ गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। नॉलेज के बिना एटीट्यूड से कैसे लिख पाओगे उसको? उसमें तो पता होना चाहिए ना कि ये 5 पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो समहाउ इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज। अर्लियर you get it right, better it would be. So this is the thing with respect to indexing and revision part. ऐसे के लिए अभी you don't have to worry, I would say. ऐसे सॉर्ट हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। यदि आपने 5 पेपर्स भी लिख दिए जो कि 10 एसेज होते हैं, so I think things are getting sorted. So right now just be worried about your general studies paper, just be worried about the optional paper. Those who are targeting 26, a suggestion would be that आप
25 को टारगेट करेंगे तो मे बी थिंकिंग दिस कैन बी अ टेस्ट फॉर यू, सो दैट द सेम प्रोसेस कैन बी दोज हु, आपने बहुत टॉपर्स का जो आप सुनते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, मेनी ऑफ देम दे आर प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। सो जो आपको वो आपको टेक्निकली फर्स्ट अटेम्प्ट दिख रहा है। गिविंग एग्जांपल ऑफ रिया डाबी एंड टीना डाबी। टीना डाबी स्टार्टेड हर कोचिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज इटसेल्फ, पता था कि देना है, एग्जाम देना है। सिमिलरली हर सिस्टर ऑल्सो, शी न्यू की यूपीएससी का एग्जाम देना है, दे स्टार्टेड क्वाइट अर्ली। सो टाइम तो एक लेवल ऑफ टाइम लगता है, चाहे आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट से देना स्टार्ट करें या फिर यू स्टार्ट गिविंग बिफोर। एंड फॉर 2025 में जो भी लोग दे रहे हैं अटेम्प्ट, यू डोंट हैव टाइम, बिल्कुल ही टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। मतलब प्रोबेबली आई डिड नॉट गो मच इन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बट थिंग्स आर सो पैक्ड अप। यहाँ पे आपको पर पेपर 10 दिन मिल रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट फॉर जस्ट रिवाइजिंग एंड राइटिंग, ठीक है। 70 days 7 पेपर, 10 days per paper. Here you will be completely occupied for prelims, and prelims means 4 things. It means GS static part, the geography, history, जो भी art and culture static part. Second, current affairs that you normally do through monthly magazine or yearly compilation. Third, CSAT, क्योंकि CSAT अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। There are very good students who are not getting selected because of this particular thing, CSAT. Okay. And fourth is very, very important, that is PYQ and test papers. ये मैं prelims की बात कर रहा हूँ, very important, बहुत ज़्यादा important है। आपने सुना होगा कि intelligent guessing एक term आता है, तो ऐसे नहीं वो develop हो जाता है। Only if you practice some 6,000 to 7,000 question, तो ये चीजें डेवलप होती हैं। These are 4 pillars that will keep you occupied in these 4 months, और उससे पहले आपके पास बचे हैं 5 months. So here you have to do that particular answer writing. It will help you, मतलब definitely first attempt में थोड़ा सा messy रहेगा, but I think that will help you through the process. तो टाइम नहीं है, टाइम को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग डिटेल्स में तो I think I've already gone in your batch. Which any specific thing you want to ask? NCRTs, not necessary. सारे NCRTs के थ्रू नहीं जाना है। There are certain good NCRTs. आर्ट एंड कल्चर की अच्छी है, ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी है, you can go through that. पॉलिटी की बेकार है। इफ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री की अच्छी है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें काफी अच्छी है। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द एनसीईआरटीज। ऑलवेज रिमेंबर, इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, सोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस इतना होना चाहिए कि सोर्स जेन्युइन रहे, कि फैक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि किसी साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि डायरेक्ट सीधे लाइन होती है एनसीईआरटी की, एंड देन पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि जो है एग्जैक्टली इसी से आ रहा है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यदि आप उस लेवल, ये जो एनसीईआरटीज मैंने बताया, ज्योग्राफी एंड दे आर वेरी गुड, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। बट यदि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। सो इट यू हैव टू गो सेलेक्टिवली, कोई जरूरी नहीं है। टारगेट ईयर कौन सा है आपका? ठीक है। सो 26 इज गोइंग टू बी द सीरियस अटेम्प्ट, ठीक है। तो 26 है तो if you have time, there's no harm in going through once. Are you also doing your college? You're in job, ठीक है। यदि टाइम क्रंच है तो सारी एनसीईआरटीज के थ्रू नहीं जाना है। जो इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया वो है, बाकी यू कैन रेफर टू द अदर रेफरेंस बुक्स। करंट अफेयर के लिए 2 चीजें, फर्स्ट न्यूज़पेपर, 1, ओनली 1। चाहे आप हिंदू पढ़ें या फिर इंडियन एक्सप्रेस, एनी ऑफ देम आर गुड। माय पर्सनल फेवरेट इज इंडियन एक्सप्रेस। द रीजन इज दैट इन लास्ट 4 years Indian Express has oriented itself towards UPSC.
उसने जो बहुत सारी चीजें इंडियन एक्सप्रेस जो लेके आया, उसे पता था कि एक बड़ा मे बी अ मार्केट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, एंड देयरफॉर दे हैव चेंज्ड देमसेल्फ, व्हिच नाउ हिंदू इज कॉपिंग. जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आपको दिख रहा है, इट इज अ कॉपी ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. इन इंडियन एक्सप्रेस थिंग्स आर मच मोर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी. दोनों सही है, बट पर्सनल फेवरेट इज इंडियन एक्सप्रेस, बट ओनली वन न्यूज़पेपर. फर्स्ट थिंग, इसको 1.5 आवर्स से ज्यादा समय नहीं देना है. यू हैव टू जस्ट रीड इट. एडिटोरियल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रंट पेज, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी पेज. सेकेंडली, माई सजेशन, डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ इट. Don't make notes out of newspaper. Reason, you are already having monthly magazines being provided by different institutes. So if you have it, why you are trying to create another literature which you will not be able to study? क्यों होगा क्या? क्योंकि मान के चलो कि आपने नोट्स बनाया, इसके आपने मैक्सिमम एक न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू, उससे आपने नोट्स बनाया. But the monthly magazines that the institutes give, it is a compilation of at least 4-5 newspapers, PIBs, different government websites. Okay, there are certain magazines which are paid subscription also. Plus, there are some 4-5 people working on this, and they have the experience. They know that what is important, what is not. आप maximum बना रहे, वो आधा अधूरा रह जाएगा. So anytime this will be better. If you want to work hard, आप इसके ऊपर अपना एडिशन डालें ना, इस पे आप एफर्ट लगाएं. And that's why there are many toppers. There was one All India Rank 5 Suharsh Bhagat. He very clearly said in the toppers talk that let this dirty work be done by the coaching institutes. You take the benefit of this. So if you are getting the cream of it, तो आपको क्यों हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करनी है? आप उस those who are in working professionals like you, या फिर those who are already into the services, उनको तो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है. Those who are already selected writing the examination for improvement, they don't read the newspaper. Why? Because first they have read and they know, they have trained themselves कि कैसे न्यूज़ important है नहीं है. So they get that yearly compilation, they read it just before the mains and they are able to do it. So newspaper को बस ऐसे करना है, one newspaper and follow a monthly magazine, current affairs, उससे ज़्यादा you don't require anything. Otherwise there is no end to it. There are 3 levels जहाँ पे आपका करंट अफेयर कवर हो रहा है. फर्स्ट इज दैट व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, चांसेस है आप सारा कवर कर रहे हैं. इफ यू आर मिसिंग फ्रॉम देयर, देन व्हेन यू आर रीडिंग द मंथली मैगजीन, यदि इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी आएगा. इवन इफ यू आर मिसिंग देयर, देन व्हेन यू आर डूइंग द टेस्ट पेपर्स, यदि इंपॉर्टेंट है तो वहां भी आएगा. इसके बाद भी मिस हो जाता है, देन देयर इज नो एंड टू इट. ठीक है, तो इसीलिए उतना नहीं करना है. I think this should be sufficient for this thing. तो current affairs के लिए I think this is important. हिंदी मीडियम स्टूडेंट, सेम थिंग. किस न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम स्टूडेंट का पर्टिकुलरली, हिंदी मीडियम में भी बहुत स्टूडेंट्स तो हिंदू ही पढ़ते हैं, मैंने देखा है मुखर्जी नगर में. अदरवाइज आई थिंक नव भारत टाइम्स जो है, या फिर उसका एग्जैक्ट कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मेनी ऑफ द, कौन सा, दैनिक संस्कार, सो वो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में पढ़िएगा तो हिंदू ही है. हाँ. नहीं तो सी व्हाट, अगेन इफ यू आस्क अबाउट द साइकिल दैट यू हैव टू फॉलो, तो होता क्या है कि व्हेन the monthly magazine of the previous month comes on 15th, let us say अभी अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त का मंथली मैगजीन आपको आ जाएगा 15th सितंबर को, उससे पहले तक आ जाता है. सो फ्रॉम 15th सितंबर टिल 30th ऑफ सितंबर, क्योंकि आपको बाकी सारी चीजें भी करनी है, यू ट्राई टू फिनिश द अगस्त मंथ मैगजीन. Now from 30th September to 15th October, जब तक कि सितंबर का मैगजीन नहीं आया रहेगा, you revise the earlier ones. So actually what happens is कि जो अप्रोच होता है, now students they ask कि कितना मार्क्स टारगेट करें. मार्क्स को टारगेट करना वाला अप्रोच ठीक नहीं होता. जैसे कि जीएस में कितने मार्क्स को टारगेट किया जाए,
दे आस्क PSIR में कितने को टारगेट किया जाए, देन आई आस्क देम कि आप कितने का टारगेट करना चाहते हैं, तो सर 300, तो हमने 350 में क्या बुराई है, जब टारगेट ही कर रहे हो तो 350 को टारगेट करो। सो इट मीन्स कि ऐसा थोड़ी है कि हमें 350 इतना आता था लेकिन टारगेट हमारा 300 था तो हम छोड़ के आ गए पेपर में। वी राइट एवरीथिंग दैट वी नो। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम दैट यू एलोकेट। आप यदि 10 घंटे से ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी 30% टाइम शुड गो टू ऑप्शनल because things are limited. 50% time should go to general studies. 20% time should go to current affairs and newspapers. This is one standard suggestion from my side. If let us say आपको लगता है कि मेरा GS तो complete है, तो आप optional में ज़्यादा समय दे दें. So there will be variations. इसी time duration में आपका जितना भी marks आए, 300 आए, 350 आए, 500 आए, it will depend. क्योंकि आप मार्क्स को टारगेट करके नहीं, अब पता कैसे चलेगा कि इतना मार्क्स का टारगेट मेरा पूरा हो गया, नहीं पता चलेगा ना। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। वीक वाइज आप देना चाहते हैं, सो गिव 2 days बियॉन्ड, दिस इज द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी। यदि डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी का आपको 5 hours मिल रहा है, 5 hours मिल रहा है, देन आपको 2 days you have to give for optional, 4 days you have to give for general studies and 1 day give for current affairs. न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना है। सो मैगजीन जो, क्योंकि आप डेली बेसिस पे 3 पन्ने तो पढ़ेंगे नहीं मैगजीन का, आप बैठेंगे तो कम से कम you'll read 15 pages, 20 pages of it. So इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, and this will result into this thing. Now when I was talking about this particular timeline जो होना चाहिए, in this duration जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, so mains as I told that it depends on essay, optional, PSIR and GS. अभी essay को will not take it very seriously. Pol science and general studies. Suggestion would be that you start writing test on every Sunday. Every Sunday you write a test. 6 दिन उस टेस्ट की तैयारी करें. Next Sunday, one Sunday of Pol science, next Sunday of general studies. Pol science, general studies. यदि टाइम नहीं मिल पा रहा है, then at least write test for the optionals. GS को आप comparatively ignore कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. रीजन इज दैट इन GS if you have the knowledge you can dump it there. क्वेश्चन पूछता है और सीधे आप हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, ठीक है. बट इन पॉलिटिकल साइंस इवन इफ यू हैव द नॉलेज यू हैव टू फ्रेम इट इनटू द लैंग्वेज, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है करना. दैट यू विल हैव टू लर्न. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू. प्रेफरेबली दोनों का करना है आंसर राइटिंग. नहीं हो पाए तो एटलीस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट. PYQs ऐसे what you have to do is this one. Let us say पहले टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, क्या टॉपिक्स आपको टेस्ट देना है. प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, 3 टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए. प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली. आपने नोट्स से उनको पढ़ा. You have the notes, you read it. Then you prepare short notes out of that, preferably, because this will really help you before the examination. After that, PYQs. PYQs में जो important themes हैं उनको प्रैक्टिस करना है. Somewhere around, let us say 3 टॉपिक हैं तो कम से कम 15 PYQs आपको प्रैक्टिस करने हैं. After that, you write test. सेक्शनल टेस्ट है तो 8 क्वेश्चन का होगा, टेस्ट लिखें. Then watch the test discussion. And after watching the test discussion, again write this test paper, so that whatever you have learned in the test discussion would be integrated into this. And simply this cycle you have to follow for all other topics. काफी मैकेनिकल है, काफी प्रोसीजरल है, बट करना यही है. अब चैलेंजिंग, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या होता है, दैट हो सकता है आपको संडे को टेस्ट देना है, सैटरडे को आपको लगने लगा कि तैयारी पूरी नहीं है, आपने क्या किया, उसको पोस्टपोन किया. The moment this habit gets into you, now this becomes a problem. आप प्रीलिम्स नहीं पोस्टपोन कर सकते तो किसी भी तैयारी से आप जाते ही हैं. डर मेंस के 1 दिन पहले भी लगता है, लेकिन आप चूंकि पोस्टपोन नहीं कर सकते तो आप जाते हैं. बट हियर यू हैव द कंफर्ट ऑफ पोस्टपोनिंग, तो आप ये बोल के जाते हैं कि अगली बार अच्छे से देंगे, मतलब 1 सप्ताह बाद अगले. बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता नहीं है.
So that's why maintain this particular discipline. Time को थोड़ा respect करना पड़ेगा. So that level of discipline is required. तो PYQs करने जरूरी है, especially in political science or any optional that you are taught. ठीक है. Those who are सर आप एग्जाम के बारे में बता दीजिए UPS. हाँ. So sir will explain you briefly about the UBPSC examination. So. अगर आप यूपी पीसीएस के लिए फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है कि सेम जीएस तो आपका सेम है, ठीक. पेपर 5 और पेपर 6 उस पर हम बात करेंगे. पेपर 5 और 6 वहाँ पे आप डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूपी, ठीक है. जो भी पूछा जाएगा यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा. जीएस का अगर आप टॉपिक देखते हैं तो लगभग सारे टॉपिक्स सेम है जीएस में, चाहे जीएस फर्स्ट के जो पोर्शन है जैसे हिस्ट्री का, ठीक है, तो वो पोर्शन आपका सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूपी. अब वहां पे थोड़ा सा हमें डिफरेंट टाइप में देखना पड़ेगा. तो अभी जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन पूछा है, आप सल्तनत का अगर उठाते हैं, ठीक है, सल्तनत का पोर्शन देखते हैं मिडल में, ठीक है, तो हम ये देखते हैं हिस्ट्री में इंटीग्रेटेड है, क्योंकि उस समय यूपी जो है इंटीग्रेटेड था डायरेक्टली सल्तनत से. तो जो आपकी हिस्ट्री मिलेगी वो बहुत ही सेपरेट नहीं है, आपको इंटरैक्ट है उससे, यूपीएससी वाले से जो आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है, अलग से यूपी का नहीं मिलेगा. लेकिन आर्ट एंड कल्चर में आपको वहां पे डिफरेंट आपको मिल जाता है, ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए तो यूपी में आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर पे, आप बताइए सेगमेंट वाइज, ठीक है, सेगमेंट वाइज हम देखते हैं तो एक आपका जौनपुर का आएगा, ठीक है, जौनपुर का आ जाएगा, ठीक है. जौनपुर का आर्किटेक्चर जो हम देखते हैं वहां पे हम डिफरेंट कर सकते हैं. और फिर आप देखेंगे लखनऊ में अवध का जो, ठीक है, लखनऊ में अवध का आप मेन पोर्शन देखेंगे तो पहले क्या अवध जो बोला जाता है वो फैजाबाद था. फिर आपका मूव करके वो कैपिटल अपना बनाए हैं लखनऊ को. तो आपको जो आर्किटेक्चर मिलेगा वो जो फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद का मिलेगा, तो वो आपको देखना होगा. फिर आप देखते हैं मतलब कि अवध में जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जौनपुर का आर्किटेक्चर हो गया, फिर एक अवध का हो गया, और एक जो आप कल्चरल के रूप में देख रहे हैं तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक, टेम्पल आर्किटेक्चर में बनारस का, ठीक है, और इलाहाबाद, ठीक है, इस तरह से अलग अलग और छोटे छोटे सेक्शन वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे कि गोरखपुर का है, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं. अब ये यूपी के हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आपका डिफरेंट हो जाएगा हिस्ट्री में ये सेगमेंट किससे, आपका जो मेन जीएस पार्ट 1 में है वहां पे ये सिर्फ पढ़ने का जो डायरेक्शन होगा वो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक ना, हिस्ट्री को लेके. ऐसे ही आप देखते हैं ज्योग्राफी का, ठीक है, इसमें अभी और डिटेल आप देख सकते हैं. इसमें 4 आते हैं, ठीक है, एक और आ जाएगा आपका, एक आगरा का आपका आएगा, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं. आगरा में आर्किटेक्चर का अलग से है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे. आगरा में क्या आएगा आपका, फतेहपुर सीकरी का, और आगरा का एक जो उनका आगरा का किला ही है, और जो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया है वो एक अलग से आर्ट एंड कल्चर का हो जाएगा. एक और आएगा आपका, ठीक है, जो उससे डिफरेंट करता है. तो ये आपका हिस्ट्री में कहने का मतलब ये पूरा एक आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट हम देखेंगे. और हिस्ट्री में आप जैसे ये पूछेगा कि एशियंट हिस्ट्री में तो साइट डिफरेंट डिफरेंशिएट करना क्या हो जाता है कि काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना. लेकिन फिर भी आप देखते हैं कहीं भी बुक में आपको वैसे सेपरेट करके नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो हम देखते हैं उसमें इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद का आप देखेंगे वहां पे आपको जो भी साइट्स हैं जैसे कि मध्यकालीन का पाषाण का आपको मिल जाएगा, फिर नीयू का भी मिल जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आलमगीर, ठीक है, ये सब आपको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी ज्योग्राफी जब देखेंगे तो हम अलग अलग, सर आइए आप कंटिन्यू, नहीं सर आप करिए, अच्छा ठीक है, तो हम ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। वैसे ही हम ज्योग्राफी में देखते हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी हम बेसिकली जैसे यूपी का जब बटा है, ठीक है, जब बंटवारा हुआ है तो मेन जो माउंटेन एरिया है वो आपका उत्तराखंड में चला गया, ठीक है, उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद आपका बचता है तराई का जो गिरिपथ का लिए हुए है क्या, शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक रेंज से यूपी का ज्योग्राफिकल अलग हो जाता है वहां से, ठीक है, तो आपको तराई पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसमें भांबर, ये सब आप उसको देखेंगे यूपी के ज्योग्राफी के सेक्शन में, ठीक है, वहां पे आपका ये डिफरेंशिएट करता है। फिर यूपी का क्या है, एग्रीकल्चर, यूपी का एग्रीकल्चर आता है, यूपी के एग्रीकल्चर में आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्रॉप पैटर्न कैसे है, अदर जैसे क्योंकि ये फर्टिलाइज लैंड का एरिया है, उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करता है अदर जो स्टेट्स हैं उनसे, ठीक है, अदर स्टेट से ये क्रॉप जो पैटर्न है हमारा वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ही आप अगर और सब्जेक्ट की बात करते हैं जो यूपी का पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सारा चीज वही, ठीक है, लेकिन जैसे यूपी के जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें जैसे जो जजमेंट वगैरह है, ठीक है, जो हाई कोर्ट के रहे हैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे, प्लस हाँ बोलो, नहीं सर तो नहीं आएंगे क्योंकि यूपी का आएंगे, हाँ सर आइए ना आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, तो आप Good evening, everyone. So, how are you all? All good? So, for what you are preparing actually? UPSC, PCS, or what? Both. Okay. So, if we talk about the preparation, the common thing is that जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, यानी कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आप कितना ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं सबसे पहले शुरुआत करने के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट वी शुड नॉट गो फॉर द हायर एम्स ऑल ऑफ सडन, बहुत ज्यादा हायर एम्स नहीं रखने चाहिए, या फिर वी शुड नॉट थिंक कि नहीं मैं बहुत अच्छी किताबें पढ़ लेता हूं बहुत हायर स्टैंडर्ड की। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू दैट वी शुड गो थ्रू द सिलेबस। एंड अभी जैसे सर बात कर रहे थे आपका कि कह रहे थे कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे या पॉलिटी की बात कर रहे थे, आप पीसीएस देते हो ना, पीसीएस में आप लोगों ने एक नोटिस की होगी, अगर नहीं नोटिस की है तो आप लोग अगर बिल्कुल न्यू है तो आप लोग घर जाइएगा एंड नोटिस कीजिएगा इस चीज को कि जो पीसीएस का पेपर आता है, ठीक है, स्पेशली मैं अभी पॉलिटी के 2 मिनट के लिए बात करूंगा, तो पीसीएस का जो पेपर आता है आप उसके मेंस के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे और उसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए आप पॉलिटी की, यू विल सी ऑल द आंसर्स आर देयर even in the same pattern in which pattern UPSC is asking or UPPCS is asking, right? For example, simple, the control of the legislative on the executive, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बाकी लोग हैं? ओके फाइन। तो कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव ओवर एक्सिक्यूटिव, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, अभी पीछे 2023 में आई थिंक आया है यूपीपीसीएस में, सिंपल क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी के अंदर उठाइए ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 4 टर्म्स लाइंस में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपका लेजिस्लेटिव जो है वो एक्सिक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है। और आप कहां ढूंढेंगे कि मैं लक्ष्मीकांत में ढूंढ लूं,
मैं फलानी बुक में ढूंढ लूं, मैं ढमकानी बुक में ढूंढ लूं। नहीं, आप वहां देखिए और जो लिखा है, क्योंकि बिकॉज यू विल गेट ओनली 10 मिनट्स और 8 मिनट्स फॉर एन आंसर एंड यू हैव टू राइट इन 150 वर्ड्स। डू यू रियली थिंक कि सुभाष कश्यप पढ़ोगे या कोई और बुक पढ़ोगे उतना मैटर उसमें डाल पाओगे? उतना टाइम है आपके पास? नहीं है। सेकेंडली, द कॉमन सेंस, इवन इफ यू डोंट नो एंड इफ यू नो सर्टेन थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे करेगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर? एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नमेंट। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? वी हैव टू काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज परमानेंट एंड अदर वन इज टेम्परेरी। द परमानेंट इज द आईएएस एंड पीसीएस जो आप बनना चाहते हैं, एंड टेम्परेरी इज मिनिस्टर्स। सो जो एग्जीक्यूटिव है उनका काम है एक्सिक्यूट करना, बट जो भी एक्सिक्यूशन है उसको कंट्रोल कौन करेगा? हु विल कंट्रोल? कंट्रोल द लेजिस्लेचर। तभी आप देखते होंगे अभी जब क्या हुआ, सरकार बनी 4 जून के बाद, और आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का थैंक्स मोशन आया। व्हाट इज द थैंक्स मोशन? थैंक्स मोशन क्या है? जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्लान्स को बताता है, राइट? अगर लेजिस्लेटिव जब उसको थैंक बोल रहे हैं तो अप्रूवल दे रहे हैं ना, सरकार के साथ है तभी तो थैंक्स बोलेंगे। सरकार के साथ नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके प्लान से सहमत नहीं हूं, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और मैं बोलूं कि जरा एक बार यस कर दीजिए अगर आपको पसंद आया, तो आपको पसंद नहीं आया होगा तो आप यस करेंगे? नहीं करेंगे। इट मींस जैसे ही थैंक्स मोशन आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर वो फेल हो गया तो सरकार गिरेगी। एग्जीक्यूटिव सेंटर टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा कि मुझे ऐसी पॉलिसी लेकर के आनी है, मेजॉरिटी है तो भी कंट्रोल तो चाहिए। अभी जैसे अभी सरकार क्या है? पूरे बहुमत की है? नहीं है, बिकॉज 240 सीट्स आर देयर, बीजेपी की, एनडीए की सरकार है। प्रेशर, दैट्स व्हाई दे आर रोलिंग बैक, taking every step back, and opposition is forcing them to take the step back। ठीक है, आपने देखा होगा ना मोदी जी का एग्रेशन चेंज हो गया है पहले से, अब उतने एग्रेसिव नहीं रह गए हैं। इनफैक्ट 4 जून से लग ही नहीं रहा कि देश के अंदर सरकार कोई कायदे से चला रहा है, होता है ना। तो पहला स्टेप तो वही हो गया आपका। सेकेंड स्टेप क्या है? बजट। बजट को कंट्रोल कर सकता है ना लेजिस्लेचर? मना कर दे कि भाई हम इसके लिए फेवर में वोट नहीं करेंगे, सरकार के लोग भी मना कर सकते हैं। सेकेंड कंट्रोल हो गया। पार्लियामेंट्री कमिटीज, थर्ड कंट्रोल हो गया। जितने भी आपके एडजमेंट मोशंस आते हैं, ठीक है, ये जो मोशन आते हैं सरकार को चेक करने के लिए, वो क्या होते हैं? कंट्रोल। नो कॉन्फिडेंस में मोशन, कंट्रोल। सो दीज सिंपल 5 थिंग्स आप लिख के चले आइए, 150 वर्ड्स में आपको नंबर ना मिल जाए तो मुझे आप बताइए। एंड दिस इज रिटन इन यूपीएस एनसीईआरटी एंड यू आर लुकिंग फॉर द डिफरेंट बुक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करते हैं, सिंपल सा एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम बात करें कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इतनी मजबूत क्यों नहीं है? उसको इतनी पावर्स क्यों नहीं दी गई हैं? हम तो कहते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट हमने क्रिएट कर दिया, बट 3 टायर गवर्नमेंट क्रिएट करने के बाद भी व्हाट आर दे कैपेबल? नो, दे आर नॉट, बिकॉज दे लैक फंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, पंचायत की बात करते हैं, पंचायत में आप क्या देखते हैं कि पंचायतों के पास अपना कैडर तो है ही नहीं। काम कैसे कराओगे आप? डिपेंड तो आप वीडियो पे ही कर रहे हो, डिपेंड तो आप डीपीआरओ पे ही कर रहे हो, अपना कैडर कहां पे है? सो देयर आर सर्टेन स्मॉल थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ एंड इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक्स। बिल्कुल, हाँ। देखिए, आपका पहले कोर मजबूत होना। जब आप कहीं लड़ाई करने जाते हो तो सबसे पहले खुद तो मजबूत हो थोड़े से, वो अटैक कैसे करेगा वो सेकंड थिंग है। अब उसको मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। जो आपने कहा जैसे लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशन आप सॉर्ट आउट कर पाओगे अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ा करके। एंड बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को आपको पकड़ लेना है, एक किसी को पकड़ लीजिए। एंड नेवर एवर इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मैं हिंदी मीडियम वाला पढ़ूंगा। आज जो आर्टिकल द हिंदू में आता है, हफ्ते भर के अंदर किसी न किसी फॉर्मेट में चेंज होकर के, ट्रांसलेट होकर के, मतलब ट्रांसलेट इन द सेंस कोई लिख करके आपको अमर उजाला में दे देगा, दैनिक जागरण में दे देगा। सेम थिंग इज देयर। देयर आर 2-3 बुक्स, सिंपल मैगजीन्स और 1 न्यूज़पेपर, आप उसके थ्रू जाइए। अभी आज की बात कर लेता हूं। जैसे अभी आप बात करें, मैंने कहा कोर की बात की, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, राइट? अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सब कैटेगरी में क्रीमी लेयर में उसमें क्या बोलते हैं SC ST में सब कैटेगरी लेकर के आएंगे। अब इसकी डिटेल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये कहां मिलेगी आपको? आर्टिकल के अंदर।
आप देन यू हैव टू रीड द आर्टिकल, डरिए मत, आर्टिकल पढ़िए, कट करिए, अंडर निकाल लीजिए और निकाल करके उसकी एक फाइल में रखिए और फाइल बनाइए अलग अलग तरीके की, लाइक अलग अलग ऐसे करके फाइल्स बना लीजिए, ठीक है। इसमें एक सोशल इश्यूज और सोशल न्यूज की फाइल बना लीजिए, एक आप पॉलिटिकल न्यूज को और करंट की इस तरीके से बना लीजिए, निकाल करके वो अपना आप रखते जाइए। तो जो भी आपका पॉलिटी का जितना भी आर्टिकल मिला उसको आपने, वो आती है ना एक आपकी जिसमें मार्कशीट रखते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, बस उसमें आप वो आर्टिकल काट के लगा लीजिए और मेन उसमें हाईलाइट कर लीजिए कि ये पॉइंट ऐसा। अब जब वो पॉइंट पर पढ़ रहे हैं, सपोज करो SC/ST एक्ट के बारे में उसने कहा, तो एक्ट तो वहां वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा ना, देन यू हैव टू डू दिस, एक छोटा सा नोट्स बनाना है कि व्हाट इज SC/ST एक्ट और वो वहीं पे टैग कर दीजिए। This preparation always takes time. Always remember this thing. Never ever be in hurry. अगर आप इस गलती में हैं, रील्स देख करके, यूट्यूब देख करके कि मैं 1 साल में IAS बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपका सपना तोड़ रहा हूं यहीं पे। Even you cannot read the all content, whatever content is required. It takes 18 months at least. You need to study at least 5 to 6 hours daily and focus should be very very strong. 12-15 घंटे की बात नहीं करता, 12-15 घंटे कोई नहीं पढ़ता। 12-15 घंटे क्या होता है, आप नेचुरल प्रोसेस में आ जाता है, लेकिन वो 12 घंटे आप सोच के पढ़ नहीं पाएंगे कभी। जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब आप किसी टॉपिक को उठाते हैं, लेट्स से आपने इकोनॉमी उठाया, आपने बैंकिंग सेक्टर शुरू किया, बैंकिंग सेक्टर को लिया, बैंकिंग सेक्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ने शुरू किए, अब आपने कमिटीज पे डिस्कस करना शुरू कर दिया, कमिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो कमिटीज के रिकमेंडेशन पढ़ते पढ़ते आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 चीजें आप अस्त्र शस्त्र के रूप में, आप तो एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखिए अपने सब अपने पास, सारे बच्चे। पहला मेरा कहना होता है कि सिलेबस तो आपके घर में ऐसे स्टिक होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस का, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिलेबस याद नहीं है, आपको यू डोंट नो व्हाट इज सिलेबस, तो आप समझ लीजिए आप रैंडम पढ़ते रहेंगे, अथाह सागर है अंडर, वो कहते हैं ना, सब टॉपर्स बोल देते कई बार, अंडर द सन वॉट एवर इज देयर यू हैव टू स्टडी दैट। नो, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर अबाउट द सिलेबस, दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग ऑल द थिंग्स। आइडेंटिफाई कि वेदर if there is comparison of the constitution is required, तो where it is required? Do we know about the shadow cabinet? In which country it is? shadow cabinet किस देश में है, क्या हमको पता है? नहीं पता है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन, हमने कंपेयर नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन को। ब्रिटेन में होती है ना शैडो कैबिनेट, लीडर ऑफ पोजीशन एक्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो या फिर अब वहां का जो स्पीकर है और हमारा स्पीकर है, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज वहां का स्पीकर कैसा होता है, न्यूट्रल, एक बार सीट पे बैठेगा रिजाइन कर देगा पार्टी से। यहां का स्पीकर क्या होता है, पार्टी बेस्ड होता है। तो ऐसे छोटे छोटे कंपैरिजन आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेयरली जस्ट बाय रीडिंग द आर्टिकल्स, मेयरली रीडिंग बाय द सिंपल थिंग्स यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम। यू हैव टू स्टडी एंड माइन्यूटली यू हैव टू स्टडी। आपको समझ में आई बात ना? कितने लोग पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम कोई ऐसा है जो क्लास में पहली बार तैयारी करने जा रहा है? बच्चा पार्टी, हाँ वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। देखिए सिंपल सा फंडा है, 15 से 18 महीने आंख बंद करके बिल्कुल तैयारी करिए, बहुत मेहनत से पढ़िए, 5 से 6 घंटा डेली पढ़िए। सबसे पहले सिलेबस निकालिए, सिलेबस को पूरा बाइफरकेट कर दीजिए, छोटा छोटा तोड़ दीजिए एकदम। नहीं तोड़ पाइए ले आइएगा मेरे पास, यहीं बैठूंगा, मिलूंगा, ले आइएगा, तोड़ दूंगा मैं उसको बारीकी से। आप फॉर एग्जांपल बैंकिंग, आपने इकोनॉमी पढ़ रहे हो, मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग आपने पढ़ना शुरू किया, तो मनी एंड बैंकिंग में आप मनी क्या होता है, व्हाट इज फिएट मनी, ठीक है, व्हाट इज M0, व्हाट इज M1, व्हाट इज M2, व्हाट इज M3, व्हाट इज M4, आपने सुना ही नहीं होगा कई लोगों ने, ठीक है। आप पहले वो जानिए, फिर जानिए कि वाई ये सब पूरा बैंकिंग पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। क्या हमें क्लर्क का एग्जाम देना है? नो, क्लर्क का एग्जाम देना है, बैंक में जाना है, देन व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस बैंकिंग, व्हाट इज द पर्पस? To understand that whenever we will be there as an officer, how we are going to include the public in this system. Public को कैसे आप अपने साथ जोड़ोगे? That there is the term ना financial inclusion.
जब से मोदी जी आए तब से आपने एक टर्म सुना होगा बहुत ज्यादा, जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल। बट क्या मोदी जी आए तभी ऐसा हुआ? नो, नॉट एट ऑल। जब देश आजाद हुआ सबसे पहला काम हुआ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। व्हाट इज द पर्पस? कि प्राइवेट बैंकों पे आम आदमी जाने से डरता है, उसके पास पैसा भी नहीं है, करप्शन भी है, सब कुछ है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? जब नेशनलाइज्ड हो जाएगा तो आम जनता भी जुड़नी शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट एक तरफ इकोनॉमी में स्टेप ले रही है कि नहीं ले रही है? दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आ रही है। बलवंत राय मेहता कमेटी बना रही है जब वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। पॉलिटी में स्टेप ले रही है कि नहीं ले रही है? इट मींस यू विल ऑलवेज सी दैट देयर इज द ओवरलैपिंग। ये जो है वो ओवरलैपिंग है। एक काम चलेगा तो उसके सपोर्ट में दूसरा काम चाहिए। इफ लॉज आर नॉट देयर, लेजिस्लेशन इज नॉट देयर, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप सोचो, हमने कहा एलपीजी आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया, प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि हमारे पास पैसा है, हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी भी है, पैसा दे देंगे, लगा देंगे, सब कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब आपकी जरूरत तो फिर है ही नहीं है, मैं ही कर लेता हूं सारा। गए करने के लिए, इनके घर पे पहुंच गए, लगाया एक पिलर इनके दरवाजे पे, जैसे लगाया लाठी लेके बाहर आ गई। है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे, यहां गाय बनती मेरी? ठीक है, तो क्या लगा पाएंगे? नहीं। ये आए दौड़ते दौड़ते सरकार के पास, सरकार सरकार पैसा ऐसा सब है, लेकिन वो लगाने नहीं दे रहा। तो दूसरा आदमी जो लगाने गया था इनके दरवाजे पे, वो तो लगाने नहीं देता, एकदम हेल्थी आदमी बाहर निकलता लाठी लेके मारने के लिए। तो सरकार ने क्या कहा? चलो सुनो, ये कागज लेके जाओ, दिखा देना उसको। अब वो कागज लेके गए, इनको दिखाया, कागज में लिखा था पर पिलर 5000 रुपीज पर मंथ। इन्होंने तुरंत गाड़ी वाड़ी गाय सब हटाई, भैया तुम सारे लगा दो दरवाजे के सामने 6 पिलर, मैं पीछे से दीवार फांद के निकल जाऊंगा, महीने के 30,000 आ रहे हैं। दिस इज व्हाट? रेगुलेशन। दिस इज समथिंग विच इज रेगुलेशन। रेगुलेट कर रही है सरकार। वही एलपीजी के बाद आया रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। सरकार रेगुलेट करती है अब चीजों को, और प्राइवेट सेक्टर से कहती है तुम आगे बढ़ के करो। कहती कि नहीं कहती है? तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से अपना विजन डेवलप करिए कि आपको सिंपल एनसीईआरटी वो 11th के बच्चे की तरह नहीं पढ़नी है। आपको कोई बुक जो है वो ग्रेजुएशन के सिंपल जो ग्रेजुएशन का पेपर लिख रहा है उसकी तरह नहीं पढ़नी है। आपको पढ़ना है कि जब आप करने जाएंगे तो क्वेश्चन की नीड के हिसाब से आपको ये एस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तभी मैं कहता हूं सिलेबस इज द की। किसी भी युद्ध के अंदर अस्त्र और शस्त्र बहुत जरूरी होते हैं ना। कहते हैं रणनीति बनाइए। तो रणनीति कैसे बना? कोई युद्ध कैसे आप जीतते हैं? एक तो आपके पास अस्त्र और शस्त्र हो, और दूसरा क्या हो? सामने वाले की वीकनेस पता हो, तभी तो आप सामने वाले को हरा सकते हैं। अस्त्र शस्त्र आपके क्या है? वहां पे आपका जो सिलेबस है वो आपके अस्त्र शस्त्र हो गए, ठीक है, उसकी तैयारी आपने की। और जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं वो यूपीएससी की वीकनेस बताएंगे कि भैया ये यही बार बार गिरते हैं, यही जाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूपीएससी एक बहुत स्मार्ट इंस्टीट्यूशन है। यूपीएससी बहुत स्मार्ट इंस्टीट्यूशन है। नोबडी कैन बीट इजिली, ओनली द स्टूडेंट कैन डू दैट थिंग, और कोई नहीं कर सकता। हम टीचर्स कोई नहीं कर सकते। क्यों? यूपीएससी ऐसा पेपर बनाता है कि हमारे जैसे हजारों टीचर इस देश के अंदर पेपर आने तक नहीं बता सकते कि यह आएगा। अब पेपर आने के बाद झंडा फहरा देते हैं, देखा पढ़ाया था ना, आ गया। बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया सिंपल रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। इस पे एक क्वेश्चन भी आ गया मिलता जुलता छूता हुआ भी, तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं मैंने बताया था। बट स्टूडेंट नीड टू स्टडी प्रॉपरली। तो मैंने कहा जो भी पहली बार आप बच्चे लोग पहली बार करने जा रहे हो, यूपीएससी में अच्छी बात यह है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 1.5 साल 2 साल पढ़ेंगे, तो आपका लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लेंगे। तो ऐसा कंडीशन नहीं होता कि जैसा लोग बताते हैं या डरा देते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करोगे, नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे। ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट यू शुड बी ओपन फॉर दैट। उन ऑप्शंस के लिए ओपन होना पड़ता है, ठीक है। आप अपनी अननेसेसरी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करिए। मेरा कहने का मतलब होता है आप प्रॉपर पढ़िए, सिलेबस को आइडेंटिफाई करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी। और सोर्स, जो जितना भी रिसोर्स आप यूज करते हो, बुक्स बहुत लिमिटेड, मोर एंड मोर टाइम्स उसको रीड करना है। एक बुक आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे, दैट इज बेटर कि 10 अलग अलग बुक पढ़ोगे, क्योंकि ब्रेन आपका वो रिटेन नहीं कर पाएगा।
है ना, ये बात सही बात है कि नहीं? आप लोग देखते होंगे जो चीज आप बार बार पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। बहुत सारी दो चीजें आप कभी नहीं बोलते, एक जो आपके बिल्कुल जिसे दिल कहते हैं लेकिन वो दिमाग होता है, दिमाग को छू जाती है, ठीक है। जैसे बचपन के फ्रेंड्स कितने साल बाद भी मिले, हल्की सी झलक देख के भी नाम याद आ जाता है। भूलते हैं? नहीं भूलते, बिकॉज वेरी अटैच टू द हार्ट। सेकेंड क्या है, रेपिटेशन इज देयर। इफ अगर वहां बार बार रेपिटेशन हो रहा है तो आपको वो चीजें क्या हो जाती है, बैठ जाती है। 24 आवर्स के बाद जो होता है हमारी मेमोरी का 18% ही बचता है, बाकी सब जो उड़ जाता है। आप देख लो पूरे कल के दिन का तुम्हें मेन 20% 15% चीजें याद होगी, बाकी सब भूल चुके होगे, जो एकदम एक्चुअल, और वो याद होंगी जो डेली कर रहे होगे। तो रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रिपरेशन में मेरा सजेशन इतना ही है आप लोगों से कि जब प्रिपेयर करने जा रहे हैं आप सारे लोग बच्चे, एक तो करिए जरूर प्रिपरेशन, बहुत अच्छा होता है। यूपीएससी आपने, यूपीएससी ने एक तो बहुत अच्छी चीज अभी भी कर दी है, लोग पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं। ये एक पोर्शन डालता है यूपीएससी सीसैट, ठीक है। 2011 के बाद से जब से सीसैट आया है, और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैंने देखा कितने मेरे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैंने सीसैट में कई सारी चीजें, हालांकि इकोनॉमी और एंथ्रो ये सब मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मैंने मैथ्स वगैरह का कई चीजें उनको समझा दी, बेटा कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वो बैंक पीओ हो गए, बैंक पीओ हो गए। एसएससी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बैंक में बहुत जगह ऐसा होता है कि आपका मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है, इंग्लिश अच्छी है, एकेडमिक अच्छा रहा है, मतलब आप अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, आपका बेस मजबूत रहा है, तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि आप वहां निकाल लेते हैं। एंड यूपीएससी में भी यही है, जिसने फोकस मेनली क्या होता है, वहां लगता बहुत है कंपटीशन, बट कंपटीशन है नहीं उतना उस तरीके का जितना आप सोचते हैं। एक लेवल पे जाकर के बस वही कंपटीशन है, बाकी ये भीड़ बहुत है, यहां बहुत सब भरे पड़े हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं आईएएस कर रहा हूं, मैं आईएएस कर रहा हूं, बट शो ऑफ बहुत है। आप आए, आपने जोश में आकर के एडमिशन लिया, दो महीने पढ़े, पॉलिटी तो अच्छी लगी इसलिए पॉलिटी पढ़ ली, जैसे ही इकोनॉमी में एंटर किए और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपके धाड़ धाड़ उड़ने शुरू हो गए, तो आपको लगा कि अरे भैया अब तो नहीं होगा, तो फिर दोस्त बन गए, तब तक दोस्ती हो गई, चाय पीने लग गए, डिस्कशन में टाइम होने लग गया, टॉपर्स की डिस्कस होने लगे, इमेजिनरी ड्रीम्स में जाने लग गए, तो नहीं होगा। और कोई इसमें सबसे अच्छी बात है, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो जर्नलिस्ट की बात करते हैं वो जर्नलिस्ट ही हैं, आप ये भी याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इट इज ऑल अबाउट मनी फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, दीज थिंग्स। अब इसके लिए बस आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेगी, वो आप बैंकिंग में पढ़ लीजिए, वो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गवर्नमेंट बजटिंग में पढ़ लीजिए, वो आप टैक्सेशन में पढ़ लीजिए, ठीक है, वो आप एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ लीजिए कि डॉलर आ रहा और जा रहा। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि डॉलर आता जाता है सर, इवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन कैसे होता है। भैया सिंपल सा फंडा होता है, जब तुम्हारे घर ज्यादा मेहमान आने लग जाए इसका मतलब तुम्हारी इज्जत ज्यादा है और मेहमान की इज्जत कम है। क्यों? क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, मंत्री जी हो, तुम्हारे हर आदमी आ रहा है, तो इसका मतलब जब तुम्हारे यहां ज्यादा आने लग गया इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और जब तुम रोज किसी दरवाजे पे डेली जाने लग जाओ तो तुम्हारी वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी, वो तुम्हें मिल ही नहीं रहा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो आप डॉलर में और रुपी के अंदर, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि डॉलर अप्रिशिएट कब होगा और डिप्रिशिएट कब होगा, रुपी हमारा कब अप्रिशिएट होगा कब डिप्रिशिएट होगा। और यही कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ तो आप समझ जाओ कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती है, इन्वेस्टमेंट एफडीआई बढ़ाना चाहती है, तभी हमारे यहां क्यों डिवैल्यूएशन कर रही है। तो सिंपल बातें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, बट द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लोग। हमने कॉम्प्लेक्स बनाया इसलिए हमें 10 साल लग गए तैयारी करने में, नहीं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 साल 3 साल में सिलेक्शन होता है। 2014 में एक स्टूडेंट मेरे पास आया, ऐसे इन जनरल आया और बोला सर मुझे तैयारी करनी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन उससे ये हुआ कि व्हाट हैव यू डन, तो उसने कहा बीटेक। मैंने कहा कितने साल में, ऐसे ही बीटेक वालों को बहुत परेशान करता हूं मैं क्लास में, तो मैंने कहा कितने साल में, बोला 4 इयर्स। मैंने कहा जाओ 4 साल बाद सिलेक्शन होगा। जनरली मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मतलब आई वाज नॉट अवेयर, मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं था। मैंने कहा 4 साल बाद पढ़ा, 2 साल पढ़ा, चला गया। बीच में 2018 में मैं बैठा था, उसका फोन आया, सर कहां है। मैंने कहा बस मैं निकलने वाला हूं घर से। तो कहता सर बस मैं 2 मिनट में आया, और मैं बाहर आया, मैं जल्दी में था, मैं निकला गाड़ी में। मैंने कहा मैं कह भी नहीं पाया कि तुम कल आना, मैंने देखा वो सामने खड़ा गाड़ी के। मैंने पूछा क्या हुआ, अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ, रिजल्ट को नहीं पूछता हूँ स्टूडेंट्स को कभी भी। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा सर पीसीएस में हो गया, इंडस्ट्रियल कमिश्नर। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। कह रहा नहीं, मैं सर सिर्फ ये बताने आया हूं कि 4 साल बाद, ठीक 4 साल बाद हुआ है। तो इट हैपेंस
बिकॉज ही वॉज फोकस्ड ऑल्सो, और वो कंटिन्यूअसली प्रॉपर प्रिपरेशन करता रहा। तो आपको 3-4 साल देने हैं। आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी आए हैं अभी 1 साल में हो जाएगा। 2 साल 3 साल लीजिए, 3 साल 4 साल में आप 2 अटेम्प्ट दे लेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या पोजीशन चल रहा है। ठीक है, आपको कोई क्वेरी हो तो पूछिए। हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जिसपे सवाल ही नहीं पूछता वो। अब देख रहे हो पिछले 5 साल से फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे तो आप क्या करोगे? ठीक है, या पिछले 5 साल में आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो आप इस साल क्या कर सकते हो? उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं, मैं कभी नहीं कहता कि पूरा छोड़ दो, एक रीडिंग मारनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि टाइम वेस्ट करो। टाइम बचाना है आपको। टाइम इज मनी, ऑलवेज रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम इज मनी। और जो लोग फर्स्ट वाले हैं, पहले साल जब आप तैयारी करो, बिल्कुल पूरी ताकत से करो, सिर्फ पढ़ना है। डोंट थिंक अबाउट द एग्जाम, जस्ट अबाउट योर एक्शंस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? कर्म पे बस, एक्शन पे रहो, बस करना है। मुझे आना तो चाहिए, पहले तुमको आ तो जाए। ऐसा थोड़ी कि आपने एक छोटा टॉपिक प्रेसिडेंट के बारे में समझ लिया, 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिख गए, आप खुश हो गए, अरे वाह पॉलिटी मेरी बहुत तैयार हो गई। अभी पूछ लेगा लेटरल एंट्री पे क्वेश्चन, अभी पूछ लेगा कि सीएम क्या जेल से बैठ करके सरकार चला सकता है, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता ही नहीं होंगे। ठीक है, तो करंट में भी जिंदा रहिए कि राज्यपाल क्या ऐसे स्टेप ले रहा है जिससे सीएम परेशान है, वो आपका क्वेश्चन बनेगा। जुडिशरी किस तरीके के स्टेप ले रही है कि गवर्नमेंट को रोल बैक करने को कह दे रही है ना? समझ में आ गई ना बात? चलिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बच्चे निकलने के मूड में है, जाने की सब लोग तैयारी में है। कोई और सवाल हो किसी का, पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेधड़क पूछिए। कितने? करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स नॉर्मली 15 मंथ्स सफिशिएंट होता है, लेकिन फिर भी आपको जब तैयारी करते हैं ना, आप 2 साल का पढ़ ही डालते हैं धीरे धीरे। करंट अफेयर को इस तरह कभी मत पढ़िए कि एज अ बर्डन। उसके लिए एक हैबिट इनकलकेट करिए कि आपका डेली का एक रूटीन होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूज और एक मैगजीन का सपोर्ट लेकर के आप उसको पढ़ते रहिए। हाँ, एक साल पीसीएस में भी 1 साल। पीसीएस में तो प्री दे रहे हो ना, पीसीएस का बायो पे फोकस करो, साइंस पे। पीसीएस में जो भी दे रहा है वो ध्यान रखे, एक तो साइंस पे फोकस करे, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी पे फोकस कर ले, ठीक है, पॉलिटी पे फोकस कर ले, इकोनॉमी पे टेंशन ना ले। इकोनॉमी बहुत जर्नलिस्ट फॉर्मेट में आता है, बजट बस देख लीजिएगा यूपी का, दैट्स इट। इतने में आपका पीसीएस निकल जाएगा। हाँ, उसका कोई तोड़ नहीं बेटा, उसका कोई तोड़ नहीं। इफ यू आर गुड इन नंबर्स, कैलकुलेशंस में, इन द सेंस की मेमोरी स्ट्रांग है, तो या अदरवाइज आप बार बार रिलेट कर लो, या तो किसी चीज से जोड़ लो। मतलब आपको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी वहां पे, वो एक दिन में नहीं होगा। मतलब मैं अभी ऐसे कुछ कहानी बना दूं, नहीं होगा, एक दिन में नहीं होता। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डेवलप द हैबिट कि मुझे किसी पर्टिकुलर डेट को कैसे जोड़ना है। तो वो डेट अगर आपको याद होने लगे, उस तरह से आपने फैक्ट जोड़ा तो आपको याद होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ट्रिक्स तो देखो बहुत दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं कि बहुत देखिए यूपीएससी में आप देखिएगा मेंस की हिस्ट्री को अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है, और प्री में आर्ट एंड कल्चर में घुमा के पूछ रहा है। जैसे यूपीएससी जो देने जाते हैं वो देखिए आर्ट कल्चर में बहुत क्वेश्चन पूछने लग गए आप, है ना? ये प्री में जाके क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस में भी वो ऐसा ही कर रहा है। देखिए अगर आपका साइंस अच्छा है, आपका ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अच्छा है और पॉलिटी अच्छा है, देन देयर इज द चांस। बट 40% तो तब भी आपको करना पड़ेगा। मतलब आप 2 चीजें समझ लीजिए, एक तो यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं, एक तो आपका करंट अच्छा होना चाहिए। करंट में 30-35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके 17-16 ऐसे क्वेश्चन सही होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपका पॉलिटी गलत ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे और चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और पॉलिटी मैं बताता हूं, ऐसा है सब्जेक्ट जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते। प्रीलिम्स में गलत नहीं होते, मेंस में गलत सही कुछ होता नहीं है, सब्जेक्टिव है वो, तो उसमें तो लिखने के उस पे है, बार बार कितना लिखेंगे। देखिए मेंस का ये है कि आप कितना लिखते हैं।
आप लिखते लिखते स्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं ना, टॉयज वो बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, तो आप जब रोज बनाते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आप धीरे धीरे अच्छी बिल्डिंग्स बनाने लग जाते हैं। सेम थिंग, यू हैव वर्ड्स, बट व्हाट यू हैव टू मेक द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट समथिंग एंड इवेलुएट ऑन योर ओन सेल्फ ऑल्सो। क्या मैं ये बात पूरी लिख पाया? तो यहां पे एक आप तो पॉलिटी पकड़ लो, दूसरा आप ज्योग्राफी और एनवायरमेंट पकड़ लो, प्लस साइंस पकड़ लो। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत ज्यादा मजबूत। तो देन हिस्ट्री में फिर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो उस समय, वैसे नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इसमें मजबूत हुए तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर सकते हो। 27 को है बस सितंबर, हाँ सितंबर तक। मोस्टली वो 31 अगस्त तक ही पूछेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो थोड़ा सा, 15 दिन का, मान लो कोई एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि पीछे वाला आगे आता है ना सितंबर में, तो इसलिए आप पढ़ लो 15 सितंबर तक बाकी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है बच्चा पार्टी किसी तरीके का? कोई डाउट? नो क्वेरीज, क्वेरीज शुड ऑलवेज शुड बी देयर। सवाल नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे देश ऐसा है ना, यहां पे गुरु शिष्य परंपरा रही है सदैव से। आप देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं, देखिए ये देश ऐसा है ना जहां गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको नरेंद्र टहलते मिलते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की जरूरत है उनको विवेकानंद बनाने की। ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है, आप सब पोटेंशियल से भरे हुए हो, सबके पास पोटेंशियल है, आपको एक सही डायरेक्शन देना है, बस सही रास्ता पकड़ा देना है, आप कर लोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग आकर के यहां पे पूछ सकते हैं, सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।